قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا، ایک نعرہ دے دیا. وہ نعرہ ہے آواز دو ہم ایک ہیں. اس کے جو خالق ہیں سردار ارباب ایڈوکیٹ، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں نعرہ، کہیں شعلہ، کہیں پتھر بن کر. ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا. ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے، سو شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے. میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام تر مظفر آباد کے ممبران کو، عوام علاقہ کو، بزرگوں کو، خواتین کو، اپنے نوجوانوں کو، علماء کو، ٹرانسپورٹرز کو، تاجران کو آج 14 عوامی حقوق تحریک و حق ملکیت و حق حکمرانی کانفرنس کے کامیاب کانفرنس کروانے میں اپنی طرف سے کور کمیٹی کے ممبران کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں، میں چاہ رہا ہوں کہ بہت مختصراً آپ کے سامنے چند گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں. آج یہ تحریک جس مرحلہ پہ پہنچ چکی ہے، آج ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اس بھائی چارگی کو قائم و دائم رکھنا ہے. اس لیے کہ آج جس چوک میں ہم کھڑے ہیں، جن شہداء کے نام پہ ہم کانفرنس کروانے چاہ رہے ہیں، ان کا جرم کیا تھا وہ سارے آپ لوگوں کو معلوم ہے. کہ جو ظلم، جبر، استحصال کا جو نظام تھا، جس کے نتیجہ میں یہاں کے حکمران طبقات نے ہمیں آٹے سے، ہمیں بجلی سے، ہمیں علاج معالجے سے، ہمیں انفراسٹرکچر سے مکمل طور پہ محروم کر دیا تھا. اور یہ 78 سالہ جو عہد ہے، جس کے اندر یہاں کے حکمرانوں نے ہمارا استحصال کیا، اور اس استحصال کے خلاف آج جب ہم توبٹ سے لے کے ممبر تک ایک ہوئے، تو پھر آپ نے ان حکمران طبقات کے جو اصل چہرے تھے وہ آپ کے سامنے آئے. کہ جب ہمارے نوجوان، یہاں کا عوام، یہاں کا اوورسیز اس تحریک کا حصہ بنا، تو اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے سینے چھلنی کیے جاتے ہیں، ہمارے تمام تر لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے، آیا یہ سارا نظام جب ہم سے ووٹ لیا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے تمام تر مسائل حل کریں گے، لیکن جب ووٹ لے کے یہ حکمران طبقہ اسمبلیوں کے اندر جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے خلاف ہی قانون سازی کرتا ہے، آپ کے خلاف ہی قانون بنا کے آپ کے اوپر آپ کا استحصال کرتا ہے. آیا آپ اس نظام کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ سے میں سوال رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا کیا قصور تھا کہ آج یہاں کا جو حکمران کٹ پتلی حکمران طبقہ ہے، جس نے رینجرز، ایف سی، پی سی منگوا کے ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کیا، آیا آج پھر الیکشن کی ٹکٹکی لے کے پھر جو ہے پھر الیکشن کے راگلا پہ جا رہے ہیں. لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو آپ کی ترجمان ہے، جو آپ کی رائے سے اور مشاورت سے فیصلے کرتی ہے کہ جب تک آئینی اور انتخابی اصلاحات نہیں کی جاتی تو الیکشن کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، کسی صورت میں نہیں بنتا.
लिहाजा 9 जून की जो काल है, उस 9 जून की काल को आप सामने रखिएगा कि उसके अंदर हमने पूरे इस खित्ते से जो हम सारे लोग मजलूम महकूम लोग थे, हमने जमा होकर पुरअमन तौर पे असेंबली सेक्रेटरीट के सामने बैठना है। फिर हम कहेंगे कि हमारी निस्बत इन शोधा के साथ है। फिर हम कह सकते हैं कि हम अपना हक के मलकियत ले सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि हम हक के हुक्मरानी की तरफ गामज़न हैं। लेकिन एक गुजारिश आप लोगों से करूंगा, देखें आज जब हम इन शोधा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि हम लोग फूल फेंकना, लोगों को कंधों के ऊपर उठाना, हम माले पहनवाना, ये हुक्मरान तबके का कल्चर है। ये हम आवाम का ये कल्चर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, हम जिस लड़ाई का आगाज कर चुके हैं, उस लड़ाई का तकाजा ये है कि हम लोग सारे बराबर हैं। हमारे अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यही चीज तो हम पावर करवाना चाह रहे थे कि हुक्मरान तबके का जो भी कल्चर है, हुक्मरान तबकात का जो भी स्टाइल है, उससे हमें कतई तौर पे एक मुख्तलिफ अवामी मज़ामती स्टाइल के साथ आगे बढ़ना होगा। नए कल्चर को डेवलप करना होगा। क्या ये नया कल्चर नहीं है? हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, हम अपने मुस्तकबिल, अपनी बका के हवाला से बातचीत करते हैं और इस निज़ाम को ललकारते हैं। फिर हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और जो हुक्मरान तबकात ने हमें तकसीम करने के लिए कभी कबीलों की, इलाकों की बुनियाद पे, पार्टियों की बुनियाद पे जो हमें तकसीम कर रखा था, उससे जब हम बाहर आ गए हैं तो यहाँ के अवाम को नए कल्चर को डेवलप करना होगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप सारे लोगों से कि आप इसका एहतमाम कीजिएगा और हुक्मरान तबके की हर एक चीज जो हमें तकसीम करती हो, जो हमारे अंदर सदैवपन लाती हो, उसको हमने रिजेक्ट करना होगा, हर दो सूरत रिजेक्ट करना होगा। और आखिर में मैं फिर एक गुजारिश के साथ, आप सारे लोग 9 जून की तैयारी करें। पूरे जो मुजफ्फराबाद डिवीजन के लोग हैं, पूंछ डिवीजन के लोग भी तैयारियों के अंदर मसरूफ है, मीरपुर डिवीजन के तमाम तर लोग भी तैयारियों के अंदर मसरूफ हैं। और मैं शाम के जो मेंबरान हैं कोर कमेटी में, उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो भी मुतालबात हैं, हमारा जो भी चार्टर ऑफ डिमांड है, वो आपके सामने पैम्फलेट की शक्ल में आना चाहिए। घर घर हमारा वो पैम्फलेट बांटा जाना चाहिए ताकि लोगों को मुकम्मल आगाही हो सके कि हमारी इंतखाबी इस्लाहत के हवाला से क्या मुतालबात है, हमारी आईनी इस्लाहत के हवाला से क्या मुतालबात है। तो लिहाजा जो भी आगे कैंप्स लगेंगे वहाँ आपको वो सारे पैम्फलेट्स मुहैया किए जाएंगे। तो इन गुजारिशात के साथ कि ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जब कहीं भी इस्तेसाल हुआ, लोग उसके खिलाफ खड़े हुए और हुक्मरान तबकात उसके खिलाफ खड़े हुए। लिहाजा आप सारे लोगों की बरादरी और कबीला एक है और इन हुक्मरान तबकात का कबीला एक है। इनकी नफ्सियात एक जैसी है, इनके मफादात एक जैसे हैं। इनके खिलाफ अब जब हम बंद बांध चुके हैं, जब एक नई सफबंदी करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमें एक होने की जरूरत होगी। हमें तमाम तर जो फरोई इलाकाई कबीलाई तस्वाब थे, उनसे बाहर आके हमने इस निज़ाम को, जिस निज़ाम ने हमें आज अपाज करके रखा हुआ है, उसके खिलाफ अंतिम और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। तो मैं इस उम्मीद और यकीन के साथ कि जिद्दोजहद का ये जो सफर है, ये जारी और सारी रहेगा और इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा अपनी निचली सतह तक अवामी एक्शन कमेटीज की तश्कील कीजिएगा। इसके अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर आदमी अपनी कुर्बानी से, अपनी जिद्दोजहद से, अपने इस आला और अरफा मकासद के उसूल के लिए वो आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए आज जो डुगडुगी बजा के यहाँ इलेक्शन के नाम पे यहाँ कोई आएगा, कोई एक पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि हुक्मरान तबकात की जो भी पार्टियां हैं, इनके खिलाफ हमने आवाज बुलंद करके एक अवामी सतह की सूरत हाल पैदा करनी है। इसलिए कि आज
अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से महरूम हैं, तो इसकी हमें देखना होगा कि हम क्यों महरूम हैं। और इवन देन इस 73 साल ऐद के अंदर जिसमें ये आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, जिसका बुनियादी मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर और यहाँ लोगों के हुकूक बहाल करवाने थे, कौन सा हमारा हक यहाँ बहाल हुआ? कौन सी तहरीक आज़ादी कश्मीर इन्होंने यहाँ चलाई है? बल्कि 2019 के बाद जो रद्द-ए-अमल अवाम का यहाँ से आया वो इन्हीं के खिलाफ आया, इसलिए कि इस 76 साल ऐद के अंदर ये हमेशा हमारे हुकूक के नाम पे, तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे हमारे खिलाफ ही नबर्द आजमा रहे हैं, जिनका गनाउना चेहरा आपने जो पहला मार था, जिसमें पहले ये 3 हमारे नौजवान शहीद हुए और उसके बाद ये जो नीचे हैं 7 ये बाद में शहीद हुए। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ये मीरपुर के शोधा हूँ, ये मुजफ्फराबाद के शोधा हूँ, ये चमियाटी वाले शोधा हूँ, हम सबको एक मरतबा फिर सलाम पेश करते हैं और ये ऐद करते हैं उनके खून से कि जब तक ये पोसीदा निज़ाम है, जब तक ये इस्तिसाली निज़ाम हमारे ऊपर मसलत है, इसके खिलाफ हम नबर्द आज़मा होते रहेंगे और इसके आखिरी खात्मे तक हम अपनी लड़ाई को जारी और सारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत